In today's live session for English subject, we have discussed the questions, the rest of the questions, whatever we were already discussing in our last class. From Yes, that sir. section, to know that whether you all have understood the concept or not. What we were studied in Yes, sir. that section, can Mehak, what we did studied in our last section in grammar junction. What was the topic? Sir, prepositional phrases. Prepositional phrases. That means in prepositional phrases, what are the prepositional phrases already we have discussed, and also we have answered these. Also we have discussed these exercises. Now the remaining exercises, question number 3. It was given as a homework because if couple of exercises were already discussed, then what is the problem in the third question? If you are not able. No, sir. Yes, Mehak, what do you want to say? What is no? Do you have any issue? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. राइटिंग सेशन स्टार्ट कर दीजिए. Writing section we can start. That means question number 3 already you have discussed. How many have completed? Priya, Siddharthi? Yes, sir. Yes, sir. Deepika Verma, you are late. Beta, you should join at proper time. It's 20. आपको 8 बजे की क्लास है. Actually, ठीक है. तो how many have completed this question number 3? I think you all write. You all need to use the suitable prepositional phrases here. The boy was dancing. कहीं पे भी हो जाएगा. On the floor, on the roof, on the rooftop. ये भी हो सकता है. In the same way, the lamp. अब लैम्प के बारे में अब यहाँ पे जो आप प्रीपोजिशनल फ्रेजेस Yes, sir. कुछ करेंगे, जो आप यहाँ पे लिखेंगे, वो आपका इसको डिस्क्राइब करते हुए नहीं, वो एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम करना चाहिए. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. So already I was discussing that these couple of the questions. The balloons. अब now what about the third question? अच्छा, let me confirm that whether if you all have written the answers, written the suitable preposition these phrases, then we can skip this and move ahead. How many have completed this one? Okay, Mehak. तो मेरा कंप्लीट है. ओके, ठीक है. प्रिया ने भी कंप्लीट किया है. सर मेरा भी कंप्लीट. कुछ भी नहीं भेजे हैं. चलिए ठीक है, जब सभी का कंप्लीट ही है, then I think I should move ahead. What about बुक्सी बेटा? महक, बुक्सी के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाए. कंप्लीट है या कुछ डिस्कस करना है? महक, यस सर. बुक्सी के सारे डिस्कस किए जा चुके हैं. मतलब आप कुछ डिस्कस करना है या सारा वो भी कंप्लीट है? सर कंप्लीट है सर. सेकंड. यस सर. सर सेकंड क्वेश्चन में. हाँ बेटा, क्या बोल रही है? सर सेकंड क्वेश्चन में सेंटेंस बनाना था. सेकंड क्वेश्चन में सेंटेंस बनाना है. चलो, इट्स आल्सो वेरी इजी. The cat jumped. What you have to do, rewrite these sentences using appropriate prepositional phrases from the box. There are 9 prepositional phrases. You have to choose out of these 9 only 5 phrases. 5 ही सेंटेंस है, तो पांचों के लिए आप एक एक ही तो यूज करेंगे. तो उसमें जो भी सुटेबल prepositional आपको लगे, appropriate prepositional phrase जो भी लगे, you have to use and rewrite the sentence. अब ये prepositional phrases जो आप यूज करेंगे, वो आप शुरू में ऐड करेंगे या बाद में ऐड करेंगे या बीच में ऐड करेंगे, it is on you. तो द कैट जम्प्ड, इसको क्या लिखा है महक? द कैट जम्प. सर द कैट जम्प ऑन द फ्लोर. द कैट जम्प्ड ऑन द फ्लोर. इट मे बी द करेक्ट. इट एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है, तो वी कैन से दैट इज करेक्ट. नाउ व्हाट अबाउट द ड्रेस इज ब्यूटीफुल. अब ड्रेस के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट फ्रेज लगेगा, कौन बताएगा? फॉर द ड्रेस इज ब्यूटीफुल, इसके लिए कौन सा फ्रेजेस यूज किया है? सर विथ द रेड स्ट्रिप्स. वेरी गुड. ड्रेस के लिए विद द रेड स्ट्रिप्स. जो दैट मीन्स कि ये कहाँ पे, ये विद द रेड स्ट्रिप आप यूज करोगे. यूज करके इसको आप लिखिए दोबारा. क्या लिखेंगे?
That dress is beautiful with that red strips. देखो बेटा, जो आपका ये होता है विद द रेड स्ट्रिप्स, मैंने बोला ना, ये बताया गया है, ऑलरेडी बताया गया है कि जो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं या तो ये एडवर्ब की तरह काम करते हैं या तो एडजेक्टिव की तरह। तो अब ये द ड्रेस के लिए यूज किया जा रहा है ना, तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, तो द ड्रेस के बाद ही आप यूज कर सकते हो, और या बाद में भी अगर आप करना चाहो तो आपका गलत नहीं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। द ड्रेस इज ब्यूटीफुल विद द रेड स्ट्रिप्स, ऐसा भी सही है। द ड्रेस विद द रेड स्ट्रिप्स इज ब्यूटीफुल, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट। ओके, नाउ कम टू द Yes, थर्ड sir. वन, द कोकोनट फेल। अब कोकोनट कहाँ पे फेल हो सकता है? ऑन द रेड टाइल रूफ, ऑन द कॉर्नर शेल्फ, Across the street. across the street. Beta, there are some other options. Across the street is also maybe the correct option. On the red tile roof, रूफ मीन्स क्या होता है? छत। तो रेड टाइल रूफ के ऊपर भी तो गिर सकता है कोकोनट, तो इट मे बी द करेक्ट ऑप्शन। सो यू ऑल कैन यूज दिस आउट ऑफ दिस कपल ऑफ द prepositional phrases, which one is, मतलब जो भी आप चाहें आप उसको यूज कर सकते हैं। The coconut fell, but how will you write this one? The coconut fell across the street या on the, बेटा coconut fell किसी के बीच में गिरा या किसी के ऊपर गिरेगा? On the red tiled roof is looking more appropriate than across the street. Yes, sir. The last one, Yes, sir. bought a car, इसके लिए क्या होगा? ये अच्छा है। This question is, देखता हूँ कौन बता पाता है। महक, दीपिका, अविरल, प्रिया। our neighbor bought a car on the red tiled roof, ये तो कहीं से भी नहीं अप्रोप्रिएट लग रहा है ना? No, sir. क्या होगा? Sir. कुछ क्या लिखा है महक आपने? आपने तो लिखा है ना? Sir, our neighbor bought a car on the corner. On the, बेटा बिफोर On the corner, sir. जस्ट आप बिना कंप्लीट किए अपना माइक तुरंत बंद कर लेती हो, क्या मतलब है इसका? पहले अपनी बातें कंप्लीट करो। Sir, our neighbor bought a car on the corner shelf. नहीं बेटा, ऑन द कॉर्नर शॉप मतलब क्या होगा? आप थोड़ा सा खुद ही सोचो। आप इसको ऐसा यूज करो, आवर नाइबर अक्रॉस द स्ट्रीट, आवर नाइबर अक्रॉस द स्ट्रीट, मेरे गली के ही जो नाइबर हैं, बॉट अ कार। कोई जरूरी थोड़ा है जो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है वो बिल्कुल लास्ट में ही आप यूज करोगे, बीच में भी तो यूज कर सकते हो, ठीक है? आवर नाइबर अक्रॉस द स्ट्रीट बॉट अ कार इज मोर अप्रोप्रिएट। I love to while away my time. I love to while away my time with, क्या होगा किसके साथ? With the red strips या with a book, कुछ भी हो सकता है। तो with the red strips तो कहीं से appropriate With a लगेगा। book. With a book. With a book is the correct. The second question is make sentence using these prepositional phrases. आपको ये prepositional phrases जो इस यहाँ पे दिए गए हैं, इससे आपको sentence बनाना। On the chair, आप on the chair में लिख सकते हो कि sat on the chair, मतलब लेकिन ही sat on the chair ये कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। आपको जो ऑन द चेयर यूज करना है वो एज ए एडवर्ब या तो एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज करना है। तो क्या लिखेंगे? क्या हो सकता है? He always sit on the chair. Yes, very good. We always sit on the chair. It is also correct. In the school, we always sit on the chair या on the bench. चेयर है तो चेयर आप यूज कर सकते हैं। Please do not sit on the chair of Thomas. लेकिन बेटा अभी जैसे आपने बोला on the chair, we always sit on the chair, यानी आप ऑब्जेक्ट की तरह इसको यूज कर सकती हो। लेकिन कौन से चेयर, ये एक तरीके से कौन से चेयर की अगर बात कर दोगी तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको एज ए एडवर्ब या एज ए एडजेक्टिव यूज करना है। यहाँ पे अगर लिख दिया गया डायरेक्टली बी सिट, ऑलवेज के बजाय बी सिट लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं उससे। बी सिट ऑन द चेयर, ऑलवेज आपने बोला था, ऑलवेज भी मैं लिख दे रहा हूँ। वी ऑलवेज सिट ऑन द चेयर। व्हाट यू आर गेटिंग हियर?
जो ऑन द चेयर है, ये ऑन द चेयर है, क्या ये एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं? क्यों? बी ऑलवेज सिट या बी सिट, यानी हम बैठते हैं, यहाँ पे बैठने का काम हो रहा है, किस पे? ऑन द चेयर। तो ये तो एक तरीके से ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये बताया गया प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो है वो हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करता है। तो क्या ये हो सकता है? यहीं पे इन क्लास कर दो या इन्फॉर्म कर दो तो बात अलग है। बी ऑलवेज सिट इन द क्लासरूम, बी ऑलवेज सिट ऑन द चेयर इन क्लासरूम, अगर इन भी अगर आप यहाँ पे लगा दे रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपको कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट को इलेबोरेट करेगा। अब क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे ऐसे क्या होगा? बी ऑलवेज सिट ऑन द चेयर इन क्लासरूम, बी ऑलवेज सिट इन क्लासरूम। अभी यही सेम आपका यहाँ पे ऐसे लिख दूं, बी ऑलवेज सिट इन क्लासरूम आपने यहाँ पे लिखा। तो एक तरीके से आप यहाँ पे बता रहे हैं हम क्लासरूम में हमेशा बैठते हैं। बट अब किसी भी ऑब्जेक्ट को या नाउन या प्रोनाउन या किसी वर्ब को डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है? ऑन द चेयर, थोड़ा सा उसके डिटेल में जा रहा है। तो ये आपका जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस यूज करना है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब एज एन एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम करना चाहिए, किसी भी नाउन को या वर्ब को डिफाइन करते हुए होना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पे जब आप अकेले यूज करोगे ऑन द चेयर तो ना तो बी को डिफाइन कर रहा है ना सिट को डिफाइन कर रहा है, कि मॉडिफाई कर रहा है बी या सिट को, ये तो बता रहा है किस पे बैठ रहा है। लेकिन जब यहाँ पे क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो देखिए ये आपका क्लासरूम को ये डिफाइन कर रहा है, कौन से चेयर के? क्लासरूम वाले चेयर को। तो अगर क्लासरूम आप में यूज कर ले रही हो दैट मीन्स कि ऑन द चेयर आपका डिफाइन मॉडिफाई कर रहा है क्लासरूम को। तो आपको ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को इस तरह से यूज करना है जिससे वो एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम करे या फिर वर्ब या किसी भी नाउन को मॉडिफाई करे, उसको एक्सप्लेन करे, तभी वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस उसको कहा जा सकता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अबाउट द बुक का कोई ऑप्शन, कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप सभी? अबाउट द बुक, कोशिश करिए, कोशिश करिए। The The only thing I like about the book is, क्या है? Its cover. Let's say I have written a sentence. अब इसमें क्या है आपका? जो about the book है, about the only thing I like its cover, अगर हम इसको लिख देते तो भी तो क्लियर रहता। लेकिन इस कवर जो अबाउट द बुक है वो कवर, ये सिर्फ द ओनली थिंग आई लाइक अबाउट द बुक कहीं ना कहीं अधूरा लग रहा है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। आपको जब आप केवल फ्रेज से, मान लीजिए अगर आप केवल अबाउट द बुक लिख करके इट्स कवर लिखना जरूरी हो गया, क्योंकि तभी जाके ये कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है। तो एडिशनल जो फ्रेजेस आपने यूज किया, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो यूज किया, तो कहीं ना कहीं वो सेंटेंस को तो पूरा नहीं करेंगे। तो अभी ये कौन से किसकी बातें कर रहा है? ये इलेबोरेट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा है, किसको? कवर को, या जो जिस चीज को पसंद कर रहा है उसको। समझ में आया? yes, sir. Yes, sir. अभी आप ग्रामर स्टेशन में भी सेम टॉपिक है, आपको और भी चीजें समझ में आएंगी, उसमें और भी क्लियरली और भी अच्छे से मेंशन किया गया है। इनटू द रिवर का भी कोई सेंटेंस बनाया है? into the river, I throw the ball into the river, तो I throw the ball या I threw the ball या he threw the ball, आपने लिख दिया he threw the ball, he threw the ball एक प्रॉपर सेंटेंस हो गया ना, उसने बॉल को फेंका, कंप्लीट हो गया सेंटेंस कि नहीं? Yes, sir. लेकिन यहीं पे अगर मैं इनटू द रिवर भी लिख दे रहा हूं तो ये क्या बता रहा है? ये इनटू द रिवर ना आई थ्रू द, अब इनटू द रिवर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि द बॉल या कहां पे फेंका गया है।
ये प्लेस के बारे में मैं बता रहा है। सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आएगी, अभी बीच बीच में नेटवर्क फ्लक्चुएशन होता रहता है, उसके वजह से आप लोग परेशान मत हुआ करिए। We are sitting in the villages, there is a lots of issues with the network, we have to face this one because we do not having any option here. The truck was prohibited to throw okay. I was discussing about the third prepositional phrases. I was discussing about the third prepositional phrases. इस थर्ड prepositional phrases का आपका एग्जांपल दिया जा रहा था। सर आपकी आवाज कट रही है। But I was discussing the third prepositional phrases. For the third Yes, sir. you can use in this way. The truck was prohibited. जो ट्रक को prohibited मतलब यानी निषेध किया गया था, रोका गया था, क्या करने के लिए? Throw the trash. ट्रैश को फेंकने के लिए, बट कहाँ? Into the river. So that means it is explaining. In this way you all need to use the prepositional phrases. In the same way also you have to use these couple of prepositional phrases while making the sentence. कोशिश करिएगा, ठीक है? अब इसको विथ अ सिल्वर चेन, क्या हो सकता है? नेक प्लेस द नेक पीस विथ अ सिल्वर चेन, द नेक पीस विथ अ सिल्वर चेन। अब नेक पीस को सिल्वर चेन के साथ जोड़ा जा रहा है। नेक पीस विथ अ सिल्वर चेन वाज स्टोलन, कुछ भी कर सकते, वाज स्टोलन फ्रॉम माय हाउस, वाज स्टोलन फ्रॉम माय शॉप या हिज शॉप, कुछ भी हो सकता है। So in this way we have done with the question number 2 as well in the book C, from book C. So आप लोग तो अभी कंप्लीट कर लेंगे ना? Yes, sir. So बेटा moving ahead on the next section. Moving ahead on the next section. After grammar junction there is a, which section is there? Writing junction. Okay, writing junction. After grammar junction there is a writing junction. But what I will do before moving the writing junction, just I would be continuing with the grammar station, because in grammar station of this chapter there is a same topic, prepositional phrases को ही बताया गया है। तो ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाया जा रहा है कई दिनों से, ये तीसरा दिन है prepositional phrases को लेकर के। सो अभी कंटिन्यूसली इसके भी एक्सरसाइज को अगर हम सॉल्व करेंगे देन prepositional phrases में थोड़ा बहुत जो डाउट है, जो कंफ्यूजन है, वो भी दूर हो जाएगा। एंड ऑल्सो वी कैन सॉल्व दीज एक्सरसाइजेस इजिली बिकॉज ऑलरेडी अभी पढ़े हैं, ठीक है? ग्रामर स्टेशन के बाद हम राइटिंग सेक्शन, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये जो तीनों सेक्शन बचे हुए हैं, आई विल मूविंग अहेड ऑन दैट पार्ट। ओके, यस सर। तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस में क्या करना है? Yes, तो फिर से प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में समझते हैं। इन द ग्रामर स्टेशन जैसे जो भी ग्रामर जंक्शन में पढ़ा है, सेम वही चीजें, वही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही चीजें, बट इन द डिफरेंट मैनर, in different manner. Let us see how the explanation is there in this section. Arun checked everything for one last time before he left. Arun checked everything for one last time before he left. The 3 suitcases were in the car. The cartoon with books and magazines was kept on the center table. The bed was made. He wished he had asked the maid to put the pillows and blanket in the cupboard. It would have looked neater, but now there was no time. As he stepped into the living room, he switched off the light in the bedroom. He quickly poured some milk in the bowl for the cat and went into the kitchen. The dishes in the sink had started shrinking. He would have to deal with them later. He made sure everything was in place and rushed to the door. But what we have to observe here, look at the underlined phrases. Underlined phrases, that means how many are underlined? For one last time, with books and magazine, on the center table, in the car, in the cupboard, in the bedroom, in the sink, to the door. These are the underlined phrases. Na? Underlined words are there.
अब ये फ्रेजेस हैं आपके, ध्यान देने की बात है, ये फ्रेजेस आपके हैं, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ के देखते हैं क्या ये एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। अरुण चेक्ड एवरीथिंग, अरुण ने सब कुछ चेक किया। फॉर वन लास्ट टाइम बिफोर ही लेफ्ट, एक बार और फिर एक अंतिम बार, बिफोर ही लेफ्ट, उसके छोड़ने के पहले, मतलब कुछ भी चेक किया या घर छोड़ने के पहले वो एक बार और चेक किया लास्ट टाइम। अरुण चेक एवरीथिंग सेंटेंस एक तरीके से यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है, बट फॉर वन लास्ट टाइम इट इज एक्सप्लेनिंग, ये कहीं ना कहीं आपके सेंटेंस को और खींच रहा है। इन द सेम वे 3 सूटकेस वर इन द कार, अब यहाँ पे भी देखा जा रहा है जो 3 सूटकेस थे वो कहाँ पे, कार में थे। ये तो एक तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है बिल्कुल। Yes, sir. द Yes, sir. कार्टून मैगजीन्स, जो कार्टून है विथ बुक्स एंड मैगजीन, कौन से कार्टून, अब यहाँ पे विथ बुक्स एंड मैगजीन्स जो है ये किसको डिफाइन कर रहा है, बुक्स को डिफाइन कर रहा है कि कौन से कार्टून की बात किया जा रहा है, कौन से कार्टून की बात किया जा रहा है, बुक्स एंड मैगजीन वाले कार्टून। वर्ड केप्ट ऑन द सेंटर टेबल, यहाँ पे भी आपका प्रीपोजिशन वर्ड से शुरू हो रहा है, द सेंटर टेबल, ये भी एक आपका प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ही है, क्योंकि द सेंटर टेबल आप कहीं ना कहीं ऑन द टेबल अगर होता तब तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, बट ऑन द सेंटर टेबल यानी जो बीच वाला टेबल है उसको आपका एक सेंटेंस कुछ वर्ड्स मिला करके एक फ्रेजेस के थ्रू बताया जा रहा है। व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व हियर, they all start with a preposition, they are known as a prepositional phrases, ये सभी preposition word से शुरू होते हैं और ये prepositional phrases कहलाते हैं। अब बाकी और भी चीजें देखते हैं यहाँ पे। the most important thing, prepositional phrases क्या हैं, prepositional phrases provide additional information, ध्यान से समझने की जरूरत है, इसी से सब कुछ सॉल्व होने वाला है, सारे क्वेश्चंस जो भी कंफ्यूजन है वो दूर भी हो जाएंगी। prepositional phrases provide additional information about either the subject or the object or the action happening in the sentence, या तो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। सब्जेक्ट समझते हैं क्या होता है, जो आपको शुरू में आता है दैट इज ए सब्जेक्ट। अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, मान लीजिए फर्स्ट लाइन में, मान लीजिए यहाँ पे द 3 सूटकेस वर इन द कार, इसी में आपका सब्जेक्ट की जहां पे क्या है, द 3 सूटकेस, Yes, sir. यहाँ पे मेन वर्ब तो है नहीं, Yes, sir. कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, ये बताया जा रहा है कि वो तीनों सूटकेस है कहाँ पे, तो मेन वर्ब के जहाँ पे वर्ब यूज किया गया, वर्ब लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसको ये देखना है कि यहाँ पे क्या जो ये कहा जा रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, एडिशनल मतलब समझते हैं अतिरिक्त, एक अतिरिक्त जानकारी देता है अबाउट ईदर द सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट के बारे में, या तो ऑब्जेक्ट के बारे में, या तो एक्शन, जो एक्शन हो रहा है उस सेंटेंस में उसके बारे में। समझ में आया? Yes, sir. So wherever we are looking for the prepositional phrases, just we have to check that whether they are giving the additional information about subject, object or action or not. अगर नहीं देते हैं तो वो that is a not a prepositional phrases. अब जैसे यहीं पे देख लीजिए, he wished, उसने विश किया, he wished he had asked the maid to put the pillows and blanket in the cupboard, that means कि ये जो एक्शन हो रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है, ये इन द कपबोर्ड, ये आपको यहाँ पे एक तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन ही दे रहा है कि where it is happening, where the action is going on. What also you need to observe, the words that is in bold. अब यहाँ पे बोल्ड में कौन कौन से हैं, टू पुट, इनटू द लिविंग रूम, इनटू द किचन। बेटा एक चीज ध्यान देने की बात है, दीज आर नॉट अ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन और दूर होगा। दे आर ऑल्सो फ्रेजेस स्टार्टिंग विद द प्रीपोजिशन, ये भी प्रीपोजिशन है, बट स्टार्टिंग विद द प्रीपोजिशन वर्ड से शुरू होने वाले ये भी आपके फ्रेजेस ही हैं, बट दे आर नॉट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, लेकिन ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस नहीं हैं, ये आपके फ्रेजेस ही हैं जो कि प्रीपोजिशन से शुरू हो रहे हैं, बट दीज आर नॉट अ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। क्यों? इन द फर्स्ट इंस्टेंस, जो फर्स्ट आपका एग्जांपल है, जो पहली जगह है, वहां पे क्या हुआ, टू पुट इज एन इंफिनिटिव,
जो टू पुट है वो आपका इन्फिनेटिव है, एंड और वर्ब इन द बेस फॉर्म ऑफ द टू अटैच्ड इट, जो कि एक बेस फॉर्म बना है टू का. In the next two instance, the preposition form two-part verb by joining with the verb. So if you notice, the verbs do not sound complete by themselves. In the next two instance, the prepositions form two-part verbs by joining with the verb. So if you notice, the verb do not sound complete by themselves. For a phrase to be prepositional, it needs to be an additional information which is not indispensable to the सेंटेंस. बेटा कहने का मतलब एक ही है कि अगर आपका जो ये वर्ब है, जो आपका ये बोल्ड फॉर्मेट में वर्ड है, जो भी सेंटेंस दिए हैं, अगर इसको हम एग्जांपल लेते हैं, एज ही स्टेप्ड इनटू द लिविंग रूम, अगर सिर्फ इतना ही कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं दिख रहा है. इसके बाद आपको कुछ ना कुछ अधूरा दिख रहा है. एज ही स्टेप्ड इनटू द लिविंग रूम, क्या ये कंप्लीट लग रहा है? जैसे ही वो लिविंग रूम में स्टेप करता है, अंदर जाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. अगर यहाँ पे छोड़ दें तो क्या ये सेंटेंस, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है? क्यों? कुछ मैं पूछ रहा हूँ बेटा, आप लोग सुन रहे हैं? शुड आई महक, आप यस सर. बताइए. यस सर. क्या क्या समझ रही हो? क्या समझा आपने? क्या समझा? माइक ऑन करके. सर यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन है, लेकिन वो प्रीपोजिशन नहीं है. क्या हुआ? फिर से बोलिए. सर यहाँ पर इस जो ये है पैराग्राफ, इसमें टू पुट इनटू द लिविंग रूम, इनटू द किचन, ये सब प्रीपोजिशन है, लेकिन तो ये नहीं है. ये फ्रेजेस हैं, ये फ्रेजेस हैं. इन फ्रेजेस के पहले भी प्रीपोजिशन वर्ड यूज किए गए हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस नहीं हैं. क्यों नहीं है? क्योंकि Yes. ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ अधूरे लग रहे हैं. ओके. यस यस सर. A prepositional phrase can function either as an adjective or as an adverb. जो prepositional phrases है वो या तो adjective की तरह काम करेंगे या adverb की तरह काम करेंगे. Already we have discussed. तो in the above sentence, we have done. So what we have to do? We have gained the three information. जो preposition